And even as Republic continues to talk to the families of the Kargil martyrs, I'd like to welcome on the broadcast Sunita Bhardwaj. She is the kin of Captain Bhardwaj. Sunita ji, firstly, we want to thank you for speaking to Republic. On this day, as you remember Captain Bhardwaj, what are the thoughts that come to your mind of what happened 25 years ago? 25 years ago, when we came to know about Amit, he is missing since 17th of May, and the letter came on 4th. I came to know quite early that he is no more. But the person who gave me a call, asked me to keep patience, so that because they were unable to collect the body from there. So all those days, I had this in mind, though he gave his life, but he has saved 30 lives, because a boy who came along with the body afterwards, he said, he asked my mother कि आप माता जी आप रो कर साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं. So that was a proud moment, though there is a loss, but we have got along with it. We have got along with us the complete forge. They are looking after us. The unit is looking after us. The Jaipur people, they are standing with us, and they really pay great pain to look after us. You know, ma'am, it is always spoken about the supreme sacrifice that the soldier makes, but I also believe that for the family, it's an even bigger sacrifice to lose your loved one and then to still beam with pride. And as far as Captain Bhardwaj's story is concerned, he was all of 27. He braved 17 bullets on him, and he still continued to fight. How do you really cope with these emotions and still manage to display such strength and resilience? See, a number of times we have seen the people at the younger age dying because of the accidents, or because of their suicides, or because of some disease. So when he was born, God has already destined a particular age to him. So we knew it कि भाई जब उसको भी मतलब पता था कि ज़िंदगी में he has something to do, and he has written in his diary also all these things कि God has sent me to do something great. So we are known by his name, and people pay homage to him and respect us. That is the greatest achievement of a life as my brother. Absolutely, and we all feel so proud. Sunita ji, I request you to stay on with us as we continue to play out the stories of the bravery and the valor of our forces. Yes, this is yet another story of India's greatest military victories in Kargil that was marked by several such instances of heroic sacrifices. One of the celebrated war heroes from Kargil was Captain Amit Bhardwaj. While he returned home from the battlefield wrapped in the tricolour, the story of his exemplary valor, service and sacrifice continues to inspire the entire nation. Here's that report. 4 मार्च को कैप्टन अमित भारद्वाज का बर्थडे था। दिल्ली में इंडिया गेट पे खड़े होकर के उन्होंने अपने मित्र संजू से कहा कि एक दिन मेरा भी यहाँ इस इंडिया गेट के पास में नाम लिखा होगा। कोई नहीं जानता था, और उनके मित्र ने भी यही कहा कि क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हो, क्योंकि इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो वर्ल्ड वॉर के नाम हैं। 20 साल बाद कैप्टन अमित भारद्वाज की वो कही हुई बात सत्य हुई, और वहाँ 4 साल पहले एक म्यूजियम बना, और उस म्यूजियम में उनका नाम अंकित हुआ। A celebrated war hero, Captain Amit Bhardwaj was just 27 when he was martyred in the icy heights of Kargil. Captain Bhardwaj's sister Sunita recalled his last conversation with his mother. पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कैप्टन अमित भारद्वाज के, जो 27 साल की उम्र में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। भारत मां की रक्षा की। और उनकी बहन मेरे साथ में है, सुनीता जी, जो बलिदान देश के लिए
न्यौछावर किया अमित जी ने, उनकी क्या यादें रही, क्या 8 तारीख को बात हुई? 8 तारीख को जो बात हुई थी वो मम्मी से हुई थी। उसको सामान लाने के लिए मम्मी ने बोला था उसको कि भाई लेह में अच्छा सामान मिलता है, तो उसने कहा ठीक है मैं सामान आपके लिए लेकर आऊँगा। सामान आया बट अमित खुद नहीं लेकर आया, अमित के साथी जो अमित का पार्थिव शरीर लेकर आए थे वो उसके इस बॉक्स में उसका जो सामान आया था उसमें वो सारा सामान आया। यानी कि अपनी माँ के लिए वो सामान ऑलरेडी खरीद चुके थे? हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी माँ के लिए सारा सामान खरीद चुके थे, वो उसी साथ में ही आया था। आज इतने सालों बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक माँ के लिए सामान तो भिजवाया था कैप्टन अमित ने, लेकिन दूसरी माँ के लिए जो मेन उनकी ड्यूटी बनती थी उसके ड्यूटी करने वक्त उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि मुझे अपने प्राण देने पड़े। हाँ, अमित ने खैर ये नहीं सोचा। जब वो बजरंग पोस्ट पे पहुंचे थे और 3 साइड से कवर फायर था, तो उसने जब अपनी टीम को बोला, जब वो कैप्टन सौरभ कालिया के सर्च पार्टी में थे, उसने अपनी टीम को बोला कि तुम पीछे रुको, मैं तुम्हें कवर फायर देता हूँ, एक एक कर नीचे उतरो, क्योंकि दुश्मन था ऊपर और हम थे नीचे, तो ऊपर चढ़ना और हम उनके बिल्कुल उस पर नॉक पे थे। तो हवलदार राजवीर ने उसको मना किया, नहीं साहब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, बाकी 30 जवान जो है वो नीचे उतर के आ गए। तो ये मैं मान के चलती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा गया, लेकिन उस जवान ने जो अमित एक यहाँ आया था, अनिल नाम था उसका, उसको पैर में भी गोली लगी थी। उसने ये कहा था कि माता जी आप रोककर अपनी शहादत, मेरे सामाई साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं, कि एक कोख उजड़ी है लेकिन उन्होंने 30 माओं की कोख बचाई है। यानी कि कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपने 30 साथियों को न सिर्फ सपोर्ट दी बल्कि उनको घायल होने से, इंजर्ड होने से बचा लिया। जी, उन्होंने कवर फायर दिया ताकि वो नीचे आके बेस कैंप में ये रिपोर्ट कर सकें कि बजरंग पोस्ट पे भी दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। With her eyes welling up, Sunita recalled her brother's story of valor and supreme sacrifice. उस मेमोरियल को देख करके सबसे पहली जो चीज जहन में आई वो क्या थी? वहाँ मेमोरियल पे जाने के बाद में खूबसूरत फिजाएं या ये सब चीज़ें सोच के कभी नहीं आता। वो पहाड़ की जब ऊंची चोटियाँ दिखती हैं, वो 3 पिंपल्स दिखते हैं जहाँ पे टाइगर हिल है और ये सारी चोटियाँ हैं वहाँ, फिर तब ये सुरसुरी मन में पैदा होती है कि कैसे हमारे फौजी जो भाई हैं, जितने हैं जवान हैं, ऑफिसर हैं, वो कैसे इन पहाड़ियों पे किस विषम परिस्थिति में, सर्दी भी, मतलब मौसम भी ऐसा ख़राब था, प्लस हमारा नेगेटिव पॉइंट ये रह गया था कि हम नीचे थे और दुश्मन हमारे ऊपर था। उनकी गोलियों की बौछार से बचते हुए और हमने जिस बहादुरी से भारत के जो वीर सिपाहियों ने जो वहाँ कब्जा किया है, उनको दुश्मन को खदेड़ा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्या आप लोगों की बात जो थी वो सिर्फ 8 तारीख को हुई थी, उसके बाद बात नहीं हो पाई? नहीं, 8 तारीख के बाद में हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। हमारे पास में बस 8 तारीख के बाद में जो है आर्मी का लेटर 4 जून को हमारे पास में पहुंचा था कि अमित इज मिसिंग सिंस 17 मई। 60 दिन तक उनका पार्थिव शरीर जो था वो नहीं आ पाया था और एक एक दिन और एक एक मिनट जो था वो भारी हो रहा था राजस्थान के लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए। सब जानना चाहते थे क्या बताया गया कि किस तरीके से क्या पाकिस्तान की आर्मी ने या उनके लोगों ने टॉर्चर कर? नहीं, अमित का जो सीन था, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को ज़रूर बहुत बुरा टॉर्चर किया गया था। उनके तो नाखून निकाल लिए गए, ईयर ड्रम्स और आंखें फोड़ दी गई, उनके नेल्स डाली गई। अमित ने कवर फायर देते हुए किया, तो जैसे मैंने एक यूनिट ऑफिसर से भी पूछा था कि हम कैसे कह सकते हैं कि अमित ने सफ़र नहीं किया या वो ज़्यादा तड़पा नहीं, तो उनका यही कहना था कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई नहीं थी। तो वो बताता है कि मतलब वो तड़पा नहीं है। उन्होंने लास्ट उनके जो बंदूकें उनके हाथ में मिली हैं और ट्रिगर पे उंगलियां थी, वो ये बताता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। 4 तारीख को लेटर आया था। 5 को मेरे पास में एक फ़ोन आ गया था जिसने ये बताया कि अमित नहीं है। मुझे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, बट लेकिन जब उसने और डिटेल्स बताई तो लगा कि हाँ, ये एक जेन्युइन कॉल है। फिर और सोर्सेज से भी हमने पता किया तो वहाँ से भी कंफर्म हुआ कि हाँ, ये सच है। बट मुझे ये कहा गया कि ये मैं बात अपने तक सीमित रखूँ, क्योंकि एक डेड बॉडी के लिए इंतज़ार करना घर वालों के लिए बहुत भारी काम होगा। हम ये मान सकते हैं कि एक घायल हो गया, उसको हेल्प मिल जाएगी, या कहीं खाई में गिर गया होगा, जब हमारी भारतीय फ़ौज उसको ढूंढ निकालेगी तो वो आ जाएगा। क्योंकि उनका ये कहना था कि युद्ध कब ख़त्म होगा हमें ये पता नहीं, 10 दिन भी हो सकता है, 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है। तो आप धीरे धीरे, तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था ये बात डिक्लेयर हुई 13 जुलाई को
जी न्यूज़ पे डिक्लेयर हुई थी दिन में 2:30 बजे कि अमित और हवलदार राजवीर का शरीर वहाँ से, उनका पार्थिव शरीर वहाँ से बरामद किया गया और 15 जुलाई को उनको जयपुर लाया गया था। जब ये सब चीज़ें चल रही थी, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, आपको अखबारों के जरिए या खबरों के जरिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो जहन में क्या चल रहा था? मुझे तो सारी डिटेल्स ये चीज़ पता थी कि वो नहीं है, तो भी सारे जो लोगों ने बोला ताकि मम्मी पापा को थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो कि क्या सीन है, तो मैंने वो सारे काम किए। हाँ, मम्मी पापा सब पूजा में लगे थे। पापा दिल्ली भी जाकर आए 2 बार सेना मुख्यालय में, सब आते ही वहाँ पे भी उनका यही जवाब था कि ही विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जहन में यही था कि कब और कैसे, कब वो आएगा। बेसिकली मेरे जहन में तो था कि वो कब आएगा, कब होगा और कब ये चीज़ें, मतलब मैं जितना अपने अंदर 56 दिन तक वो उसको मैंने संभाल के रखा था, वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन भगवान ऐसे टाइम में आपको बहुत हिम्मत देता है। Captain Amit Bhardwaj's parents now see their son in their daughter Sunita. 8 मई को फ़ोन आया था उसका। और वहाँ से जो भी फ़ोन आता था तो बात इको होती थी, 2 बार बोलती थी। शुरू में मैंने कहा तेरी आवाज़ 2 बार क्यों आती है, क्या डिस्टर्बेंस होता था? हाँ, वो इको होती थी ना, डबल आती थी आवाज़। तो कि मम्मी जब मेरी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आप बोलो अपनी बात। तो 8 में तो मैंने उसको बोला कि बेटा यहाँ पर पिछली बार जब 8 मई के पहले जब ये जनवरी में आया था, छुट्टियों में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को कई जने कहते हैं लेह में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तू लाया नहीं। कि मम्मी अब की बार मैं लाऊंगा। तो 8 तारीख को उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैंने जो है आपके लिए कुछ ख़रीदा है। मैंने कहा क्या ख़रीदा? कि वो तो मैं आऊँगा जब बताऊँगा आपको। और फिर वो तो आया नहीं, काले बॉक्स में वो सामान आया उसका। बस सिर्फ आखिरी वही बात? हाँ, वही बात थी, आखिरी बस वही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूं, लेकिन जब शहादत की बात होती है, देश की बात होती है, भारत माता की बात होती है, तो एक माँ जो है ना, उसको सब समझ में रहता है कि उसने भारत माता के लिए जो प्राण न्यौछावर किए हैं वो कितना अमिट कार्य किया है। आपको बेटे के ऊपर गर्व तो है, लेकिन जो चीज आज तक चल रही होती है आपके जहन में, वो क्या है? एक माँ के जहन में क्या चलता है? वो यही चलता है कि जैसे कहते हैं कि पूत के पग पार नहीं दिख जाते हैं। वो जब छोटा था तो एक बड़ा सारा मैदान था जहाँ हम रहते थे। उस मैदान में ऐसे ही देखता रहता, कहता मम्मी देखो ना ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, मैं तो यही उड़ाऊंगा, सबसे ऊंचा रहता है ये। इसलिए फिर 75 में मिसेस इंदिरा गांधी का बहुत नाम था, तो कहता है कि मम्मी इंदिरा गांधी सबसे बड़ी है। मैंने कहा हाँ बड़ी है, तो मैं तो वो बनूंगा। मैंने कहा उसके लिए पढ़ाई करो, तुम हवाई जहाज उड़ाओगे उसके लिए पढ़ाई करनी है, आपको इंदिरा गांधी बनना है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। फिर कुछ समय बाद उसने कहा कि मम्मी अपन भगवान को भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। मैंने कहा हाँ भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। क्यूरियोसिटी रहती थी पूछने? हाँ, क्यूरियोसिटी रहती थी और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराता था। बचपन में भी टीन शेड से गिर जाना, कर जाना, नाली में जाना, ऐसे। तो कहता है कि मम्मी भगवान सबसे बड़ा होता है। मैंने कहा तो मैं तो एक दिन भगवान बनूंगा। अब ये मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, लेकिन लोग बाग उसको हाथ जोड़ते हैं तो भगवान ही है वो एक तरह से। मेरा बच्चा लगाव था, हर बातें हम शेयर करते थे। और से पूछता जब उसने 12th पास किया था तो मैंने उसे बताया तुम्हारा क्या कैरियर तुमको बनाना है। तो अपने पास ऑप्शन जनरली हर पेरेंट के पास में डॉक्टर और इंजीनियर का रहता है फर्स्ट प्रेफरेंस। इसके बाद में और भी एवेन्यूज हैं जहाँ वो जा सकता है। तो मैंने उसे डॉक्टर बनना है कर नहीं बनना है। बड़ा अजीब सा लगा, एक डॉक्टर जो बेस्ट प्रोफेशन कहलाता है, जो ताउम्र सेवा करता है, उसके लिए राजी नहीं है। मैंने कारण क्या क्यों नहीं जाना चाहते उसने एक डॉक्टर बनने के लिए आज की जो युग है उसके अंदर 13 या 14 साल चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि 5 साल आपको MBBS करने में, 3 साल PG वगैरह करने में, जब तक आप सुपर स्पेशलिस्ट नहीं करोगे डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा लॉजिकल लगा मेरे को। मैं बड़ा इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो ठीक है क्या करोगे फिर? उसने कहा कि मैं टाइम बताएगा मैं क्या करूँगा, समय बताएगा मैं क्या करूँगा। उसने सिंपल ग्रेजुएशन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से
ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं कंपटीशन बैठने के, वो मैं बताता इसमें चले जाओ, जाता था, वो क्या करता था, किस महीने से करता था, मुझे इस बात का ध्यान नहीं, मतलब। पर जब कम्बाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम निकले, उसमें बैठा, पास हो गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, तब उसने बताया कि मैं सिलेक्शन हो गया है, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब मेरी आपकी क्या राय है। मैंने कहा हमारा कैरियर बन चुका है, हमें बनाना, अब तुम्हें कैरियर बनाना है, यू आर ए फ्री बर्ड, जो तुम्हें चूज़ करना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कभी इकलौता बेटा हूँ, मैंने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जब पैदा हुआ है तो उसकी डेथ निश्चित है, इसलिए मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ और चिंता भी नहीं करता कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, उसका कुछ हो जाएगा। सरप्राइज थे आपकी, आपका बेटा जिसको आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में इंजीनियर या डॉक्टरी कर लो, लेकिन वो फौज की बाद में फौज की नौकरी का ऐसा था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहता है और क्यों फौज में, क्यों इनक्लाइनेशन था। कभी जिक्र किया उन्होंने कि मैं फौज में? कभी नहीं किया। पर जब उसकी डायरी वगैरह हमारे पास आई, उनको देखने में पता पड़ा कि वो वास्तव में फौज का जाने का 20 साल की एज के अंदर से डिसाइड कर लिया था मुझे फौज में जाना है, क्योंकि उसने अपनी डायरी जो हमें देखने को मिली, मेरे को पढ़ने को मिली, उसमें लिखा हुआ था कि आज गॉडफादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ। उसके पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद गॉडफादर बन गया हूँ। मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं गॉडफादर बनूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके जहन में एक चीज तो थी, क्योंकि 4 मार्च को उनका बर्थडे आता है और 4 मार्च को जब उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पे इस शब्द को कहा अपने दोस्त संजू से कि एक वक्त आएगा कि इस इंडिया गेट पे मेरा नाम भी लिखा होगा, और 4 साल पहले वो चीज साकार भी हो गई। उनके जहन में सब कुछ चीज चलती रहती थी। नहीं, ये चाहती चाहिए थी, ऐसे मैं बताऊँ आपको, उसमें अब डायरी जब पढ़ने मैंने पढ़े तो एक दूसरे लगा कि मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, ये कहा कि मुझे महसूस हुआ 20 साल का हो गया हूँ। और 1/3 लाइफ बीत चुकी है, 1/3 लाइफ बीत चुकी है, मतलब 60 साल की उम्र के हिसाब से बीत चुकी है। अन्नू तुम कुछ करो, तुम ऐसा काम करो दुनिया तुम्हें याद रखे, ये डायरी के पन्ने में लिखा हुआ था। उसने एक बात और डायरी में लिखी थी, अपने मन की बात किसी को मत बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो किसी को मत कहो, तुम्हारी सफलता अपने आप लोगों को बता देगी आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हो। As India's great Vijay in Kargil turns 25, the story of Captain Bhardwaj and his comrades will remind the coming generations of the sacrifices that made the victory possible.